والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج آپ کے سامنے 4 مختصر خبریں رکھوں گا اور اس کے ساتھ ہی اس پر تبصرہ کروں گا۔ پہلی خبر، فرانس میں اسکول کے احاطے میں نماز ادا کرنے پر ایک طالبہ کو سزا دیا گیا ہے، اور پاکستان میں کراچی میں پولیس نے 42 افراد کے قاتل کو، ایک ایسے سرکاری ملازم کو گرفتار کیا ہے جس پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ بچنے کے لیے تبلیغی جماعت میں اپنے اوقات گزار رہا تھا۔ اور دوسری چوتھی خبر یہ ہے کہ لگتا ہے کہ بی جے پی حکومت اکھلیش سے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، اس لیے ایئرپورٹ پر اکھلیش کو روک لیا گیا ہے اور اس کو تانا شاہی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھی خبر بڑی افسوسناک دہلی سے ہے کہ یہاں کے کرول باغ کے ہوٹل میں آگ لگنے کی وجہ سے 17 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ آئیے ناظرین تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیرس میں الجزائر انٹرنیشنل اسکول میں ایک طالبہ کو اسکول کے صحن میں نماز پڑھنے پر 1 ہفتہ کلاس سے باہر کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق الجزائر انٹرنیشنل اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے عائشہ اپنے بریک ٹائم میں اسکول کے گراؤنڈ میں نماز ادا کر رہی تھی۔ اس سے قبل عائشہ کو اسکول کے اندر موجود ہال میں نماز ادا کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ چونکہ ہال میں منع کر دیا گیا تھا نماز پڑھنے سے، اس وجہ سے وہ میدان میں آئی اور نماز ادا کرنے لگی، جس کے بعد وہ اسکول کے میدان میں نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ عائشہ اسکول کی بہترین طالبات میں شمار کی جاتی ہیں اور وہ امتیازی نمبر بھی لاتی ہیں۔ جب وزیر تعلیم الجزائر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے عائشہ کو جماعت سے 1 ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی۔ پیرس انٹرنیشنل اسکول کے دیگر طلباء نے اپنے ساتھ عائشہ کی بھرپور تائید کی اور اس فیصلے کے خلاف 2 دن تک تعلیمی سلسلے کا بائیکاٹ کیا گیا۔ الجزائر کی خاتون وزیر تعلیم کی جانب سے دی گئی سزا پر سوشل میڈیا میں سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وزیر تعلیم نوریہ بن غبریت نے پارلیمنٹ میں کہا کہ نماز صرف مساجد میں ادا کرنا چاہیے۔ ان کے اس متنازع بیان کے بعد نوریہ پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ الجزائر کی شناخت کو ٹھیس پہنچانا چاہتی ہے۔ ناظرین دراصل یہ خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد پرائم ٹائم میں یہ ہے کہ جس خاتون نے، وزیر تعلیم نے نماز پر پابندی عائد کی ہے وہ مسلمان ہے، اسکول کا نام الجزائر ہے اور انٹرنیشنل ہے، اور حال میں پہلے نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کے چلتے جب عائشہ نے میدان میں آ کر کے نماز ادا کی تو جو ہے وہ اس پر 1 ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی۔ یہ کوئی غیر انتظامیہ، غیر مسلم کا انتظامیہ نہیں تھا، یہ وہ انتظامیہ تھا جو ہمارے اپنے مسلمانوں کا انتظامیہ تھا، اور اس کا ایک متنازع بیان بھی ہے کہ نماز صرف مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ تو ناظرین سوچئے اس بات کو کہ آج اسلام اور نماز اور اس طرح کی چیز کو مٹانے میں غیر سب سے آگے ہیں یا خود اپنے لوگ سب سے آگے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور سوچئے کہ ہم آج کہاں کو آ گئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین دوسری خبر ہے پاکستان سے۔ کراچی میں پولیس نے شارع فیصل سے 42 افراد کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزم کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والا گرفتار ٹارگٹ کلر محکمہ صحت کا ملازم ہے اور آخری واردات کے بعد وہ تبلیغی سرگرمیوں کے آڑ لے رہا تھا، یعنی خود کو چھپانے کے لیے وہ تبلیغی جماعتوں میں گھوم رہا تھا۔ یہ الزام لگایا ہے ٹارگٹ کلر پر۔ ایس ایس پی ایسٹ غلام اصفر مہیسر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزم مخالف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث ہے۔ ایس ایس پی ایسٹ نے بتایا ہے کہ ٹارگٹ کلر ساجد 42 لوگوں کو قتل کر چکا ہے اور اس کی عمر بھی 48 سال ہی ہے۔ غلام اصفر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہادر آباد پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا جس کا تعلق MQM لندن سے ہے اور ٹارگٹ کلر کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیٹیکٹ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ ٹارگٹ کلر نے پارٹی کے حکم پر بلوچ، سندھی اور اپنے ہی لوگوں کو شک کی بنیاد پر بھی مارا۔ پولیس کے مطابق ساجد عرف بونا کے ہاتھوں قتل ہونے والے کئی افراد محکمہ ایکسائز اور تعلیم کے ملازمین تھے۔ ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا تھا کہ ملزم سے برآمد
नाइम यमम के फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है और साजिद की निशानदेही पर एक पिस्तौल और दस्ती बम भी बरामद किया गया है। गुलाम असफर ने बताया कि 2014 में आखिरी वारदात के बाद मुलजिम तबलीगी जमातों में लगा हुआ था। मुलजिम का ग्रोह 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल है और बेशतर साथी मारे जा चुके हैं। इसके साथियों में सगीर मोटा और सलीम टेंशन भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम सिंध हुकूमत के महकमे सेहत का मुलाजिम है। इस मुलाजिमत के साथ साथ वो दहशतगर्दी में भी मुलव्वस रहा है। साजिद बोना ने पहला कत्ल 1995 में किया था, जब उसने जमशेद क्वार्टर्स के इलाके में एक पुलिस एहलकार को मार दिया था। तो नाज़रीन, दरअसल पुलिस की जानिब से जब तबलीगी जमात में इसके घूमने की बात सामने आई है तो तब इस बात को लेकर के जो है बदनाम किए जाने की कोशिशें की जा रही है पाकिस्तानी मीडिया में, जबकि ये 4 साल पुरानी साल 2014 की बात है और ये 18 चल रहा है, 19वां साल चल रहा है। और इतने लंबे गैप में मुमकिन है कि वो फ़र्द सुधर चुका हो और इसलिए उसने जो है जमात वगैरह में जाना शुरू किया हो। कुछ भी इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर के तबलीगी जमात को बदनाम करना ये अकल में आने वाली बात नहीं है। लिहाजा जो है सही और तहकीकात करने के बाद हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। तीसरी रिपोर्ट नाज़रीन हमारे लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने पर लगातार रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। अब बीएसपी की सरबराह मायावती ने भी इस हवाले से बीजेपी हुकूमत पर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट करके कहा, समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव को आज इलाहाबाद ना जाने देने और लखनऊ एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोक लेने का वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। बीजेपी हुकूमत की तानाशाही और जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ है। एक और ट्वीट में मायावती ने कहा, क्या बीजेपी की मरकज और रियासत की हुकूमत बीएसपी एसपी इतिहाद से इतनी ज़्यादा खौफजदा और बौखला गई है कि वो सियासी सरगर्मियों और पार्टी की तकारीब वगैरह में शामिल होने पर भी रोक लगाने पर आमदा हो गई है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस गैर जमहूरी कार्रवाइयों का डटकर मुकाबला किया जाएगा। इस वाक़े पर समाजवादी पार्टी के रहनुमा राम गोपाल यादव ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि गैर एलानिया इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा कर दी गई है। अखिलेश को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इशारे पर रोका गया है। योगी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आला साधु के भेष में हैं या नहीं मैं नहीं जानता, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मौजू है। बीजेपी अपनी हार सामने देखकर बौखला गई है। इस मामले पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान भी मंजर आम पर आया है। योगी ने कहा, अखिलेश यादव के प्रयागराज यानी इलाहाबाद जाने से तशद्दुद का खदशा था। प्रयागराज में अभी कुंभ की वजह से काफ़ी भीड़ है और उनके जाने से नज़्म नस्क की सूरत हाल बिगड़ने का खतरा था। इस तरह की सरगर्मियों से बाज आना चाहिए। योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी अफरा तफरी फैलाने के लिए जानी जाती है। अखिलेश जाते तो यूनिवर्सिटी में हंगामा होता। तलबा के ग्रुपों में तशद्दुद के खदशे की वजह से उन्हें रोका गया। हम समाजवादी पार्टी को अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। क़ब्ल उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव को आज लखनऊ एयरपोर्ट पर रियासती इंतजामिया के जरिए उस वक्त रोक दिया गया था जब वो एक तलबा तकरीब में शिरकत के लिए इलाहाबाद जा रहे थे। इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत घबराई हुई है, इसलिए तलबा के हल बर्दारी तकरीब में मुझे शरीक होने से रोका जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, ये थी बौखलाहट बीजेपी की और योगी की, जिसने लगता है कि जो है इंतखाबात आने से पहले ही बीजेपी के तमाम लीडरान डर और खौफ के साए में जी रहे हैं कि साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में क्या होगा। इसलिए जो है जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है और अपोजिशन लीडरों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो जमहूरियत के लिए किसी भी तरह हजम नहीं होगा। और यही मुल्क हिंदुस्तान मुल्क है, हर एक को अपने बोलने की भी उसको आज़ादी है, उसको रहने की आज़ादी है, खाने पीने की आज़ादी है, अपने अपने पार्टी बनाने की आज़ादी है और अपने पार्टी के तय अपने आवाज़ उठाने की आज़ादी है। ऐसे हालात में नाकबूल और ना हजम होने वाले इल्ज़ामात लगाकर रोकना ये जो है किसी को भी कबूल नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, चौथी खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली के करोल बाग इलाके में वाक़ एक होटल में आज सुबह आग लग गई है। इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। हादसे में मरने वालों में एक औरत एक बच्चा भी शामिल है, जो कि आग से बचने के लिए खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक हादसा करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस में हुआ। दिल्ली फायर सर्विस चीफ
अनिल गर्ग ने कहा कि इस हादसे में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं, जबकि इससे ज्यादा की तादाद बताई जा रही है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस 4 मंजिला होटल में 35 कमरे हैं। पूरे होटल को दिल्ली आई हुई एक फैमिली ने बुक किया था। सुबह तकरीबन 4:30 बजे मिली इत्तला के बाद से कम 25 फायर सर्विस एहलकार जाए वारदात पर पहुंच गए थे। वहीं दिल्ली हुकूमत ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म दे दिया है। जाए वारदात पर पहुंचे दिल्ली हुकूमत के वजीर सतेंद्र जैन ने कहा 17 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग जख्मी हुए। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने जांच के हुक्म दे दिए हैं। इमारत की तामीर कवानीन के मुताबिक इस मसले में 4 मंजिल पार्किंग से बड़ी इमारत नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इलाके में देखा है कि कई इमारतें पूरी तरह से उसूलों को अनदेखा करके बनाई गई हैं। फायर महकमे को हुक्म दे दिया गया है कि वो सभी इमारतों का तज्जिया करें और आज से रोजाना रिपोर्ट्सों पे उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाली इमारतों को सील कर दिया जाएगा। हादसे में जख्मी और मरने वालों की लाश को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और BKL अस्पताल ले जाया गया है। नाज़रीन, साफ सी बात है कि दिल्ली में इस तरह की कई होटल्स आपको मिलेंगे, जो होटल्स जो है गैर कानूनी तौर पर बनाए गए हैं, जिनकी इजाज़त 1 मंजिला या 2 मंजिला मिलती हैं, लेकिन 4 से 5 से 6 मंजिला मिलते हैं। और मुंबई और दिल्ली के इन बड़े बड़े शहरों में अक्सर इस तरह के आगजनी के वाक़यात सामने आते ही रहते हैं, जिसकी वजह से आम लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। अब ये ताज़ा वाक़या अब दिल्ली का है। मरकज़ी दिल्ली में इस तरह का वाक़या पेश आने के बाद फिर ये सोचा जा सकता है कि पूरे मुल्क भर में किस तरह के गैर कानूनी होटल्स हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आम आवाम की जानों के साथ खेल रहे हैं। इसमें बिल्डिंग बनाने वालों की न जान जाती है, न बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा देने वालों की जान जाती है, न मालिकों की, न मुलाजिमों की। इसमें अगर जाने जाते हैं तो आम लोगों की जो है इसमें रिहाइश इख्तियार किए होते हैं। लिहाजा हुकूमत पर जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गैर कानूनी इमारतों की निशानदेही करे और उस पर जो है सील करे और उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करे। इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा प्राइम टाइम में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और कल इंशाल्लाह फिर कोई और ख़बरों के साथ और उसके तबसरे के साथ प्राइम टाइम में आपके सामने हाजिर होगी। जाते जाते आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।